Hello students, welcome to Unacademy. This is Bharat Gupta and you're watching class on must solve questions before CAT. As you all know, your CAT exam is just 15 और 17 days remaining. जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपका पर डे वन डेज लेस हो रहा होगा. सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जरूर करने चाहिए. तो आज इस क्लास का मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ. इन दिस वी विल सॉल्व सम मस्ट वी विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कैट एग्जामिनेशन. So you can join a subscription plan by using my referral code, that is Bharat_Gupta, and using this code Bharat BHARAT Bharat_Gupta. Using this code you will get 10% discount on all course fee at an academy. And remember, we provide national scholarship test. We provide national scholarship test every Sunday 5 to 5:40 p.m. Remember, we conducted around 2 tests for quant, 1 test for LRDI, and 1 test for VARC. Now, this Sunday, we are conducting a test on LRDI and date is 15th of November. Remember to join this test live, because if you give this test live and if you get a rank between 1 to 10, you could win a prize of 5,000 Amazon voucher, or 11 to 30 you could win a prize of 3,000, and 31 to 15 you could win a prize of 2,000, right? So it is very important and important for all the student giving CAT or 2020 की बात करते हो या 2021 की, तो must attempt this test. And now, what are the benefit of subscription plan? See, in case of subscription plan, you will get 50 to 70 hours live classes daily. Right? Live classes daily में हम लोग क्या करते हैं? We have more than 50 educator take usually 1 to 2 hours daily. तो जैसे मैं ही 2 से 3 hours class लेता हूँ, तो you can attend all these classes. We will provide you complete guidance for quant, LRDI, VARC. So यहाँ पर आपको सब complete guidance मिलेगी. And the important part is doubt clearing session. We provide live doubt clearing session. Every fourth class is a doubt clearing session. You will get all India mock test, then sectional test, then quizzes. So और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे previous courses होंगे, you can watch all these previous courses, right? And मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है. दिस स्टार्टेड ऑन 21 अक्टूबर. आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपकी क्लासेस छूट गई. दिस इज कंप्रिहेंसिव कोर्स फॉर कैट 2021 स्टूडेंट. सो यूज दिस रेफरल कोड Bharat_Gupta to get 10% discount. So we have 1 month, 3 months, 6 months, 12 and 24 months. So let's say you are preparing for 2021 and you go for 2-year plan. And if you use my referral code, you will get 10% discount. So you have to pay just 18,900. Using this code is Bharat_Gupta. देखो ऊपर भी scroll कर रहा है. You can use this code to get 10% discount. चलो start करते हैं. See, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, these questions are very important, very interesting for you. आप जब भी ये क्वेश्चन देखोगे तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चंस को. तो पहला क्वेश्चन है, 2 cities A and B are 1200 kilometer apart. At 9 a.m. a car leaves A for B and a bus leaves B for A. Car A covers 1/3 the distance at a speed of 80 km per hour, half the remaining distance at 100 km per hour, and the rest at 120 km per hour. Bus complete the journey by traveling at 80 km per hour, 100 km per hour, and 120 km per hour respectively, for equal interval of time. When and where will the two vehicles cross each other? And options are at 5:08 p.m. and 610 km from A. अच्छा, B option at 3:54 p.m. and 610 km from B, at 4 p.m. and 590 km from A, and at 3 p.m. and 610 km from B. तो चलो कैसे करना है. देखो आप क्या करो, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो को पॉज करो, एंड देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. देखो हमारे पास 2 सिटीज हैं. सिटी है A और B, and these 2 cities are
1200 किलोमीटर अपार्ट एट 9 AM। तो यहाँ से ट्रेन एक कार चलती है 9 AM पर। अ कार लीव्स A फॉर B एंड अ बस लीव B फॉर A सेम टाइम पर 9 AM पर यहाँ से बस चलती है, यहाँ से कार चलती है, राइट, और यहाँ से बस चलती है। देखो कंडीशन दे रखी है, कार कवर्स 1/3 द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 80, हाफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 100। तो देखो अगर मैं कार की बात करता हूँ, फॉर कार, सो इट ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस, तो 1/3 ऑफ 1200 हो गया 400। इट कवर विद द स्पीड ऑफ 80, सो टाइम टेकन वुड बी 80 बाई 400 बाई 80, ठीक है, 5 आवर्स। तो ये इस वाली डिस्टेंस को 5 आवर में कवर करेगी। हाफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा 800, उसका हाफ 400। तो इट कवर विद, देखो ये टाइम t1 हो गया, सेकंड का टाइम t2, इट कवर विद द स्पीड ऑफ 100, तो 400 बाई 100, इट टेक्स 4 आवर्स एंड रिमेनिंग एट 120। तो t3 कितना हो गया 400 बाई 120, दिस इज नथिंग बट 10/3। तो टोटल टाइम यहाँ पर आ जाएगा। हमने पार्ट ले लिया। अच्छा, अगर मैं बस की कंसीडर करता हूँ, बस को कंसीडर करता हूँ फॉर बस, यहाँ पे गिवन है बस कंप्लीट जर्नी बाय ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि वो जो तीनों पार्ट है, जो इसने 80 चला या 100 से या 120 से, वो टी आवर्स के लिए है। तो देखो पहला टाइम 80 इंटू टी, ये होगी डिस्टेंस, प्लस दूसरा टाइम 100 इंटू टी, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, एंड 120 बाई टी, दिस इज इक्वल टू 1200। तो ये कितना हो जाएगा 300, t is equal 1200, और we can say that t is 4 hours। इसका मतलब देखो बस जो है पहला पार्ट 4 आवर का चलती है 80 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 4 आवर चलती है 100 से, नेक्स्ट 4 आवर 120 से, टोटल टाइम लगा इसको 12 आवर। अभी समझो बात को, यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स क्या होगा। देखो 4 आवर्स में ये चलेगी अब, क्योंकि ये 5 आवर्स तक चलती है 80 किलोमीटर से, तो 4 आवर्स में इट विल कवर 320। तो कार विल कवर, थोड़ा जगह छोटी कर देते हैं इसको, कार विल कवर 320 किलोमीटर, ठीक है। 4 आवर हो गया, मतलब क्या टाइम हो गया 9 से 4, 1 PM हो चुका है, ठीक है। इधर 4 आवर में इट विल कवर 320। अच्छा, ये जो है इट विल कवर, ये जो बस है, बस भी 320 कवर करेगी, क्योंकि पहले 4 आवर में तो उसकी स्पीड 80 है ना, 80 इंटू 4 हो गया 320। अब यहाँ पे बच गया 1 PM। अब ध्यान देना है 320 डिस्टेंस होगी 640, बची कितनी डिस्टेंस 560, है ना। अब 1 PM हो चुका है, डिस्टेंस बची है 560। नाउ बस इज मूविंग विद, अच्छा हम एक काम और करते हैं, क्योंकि ये जो बस है ना 5 आवर्स तक तो 80 चली, तो हम 5 आवर की बात की वो निकालते हैं। तो देखो थोड़ा सा एक और चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि जो बस है ना, ये जो बस है ये 5 आवर तक चलती है 80 से, तो 5 आवर का निकाल लो इसका। हम यहाँ पे 2 PM की कंडीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 320 प्लस कार की स्पीड 80 किलोमीटर, तो ये 400 हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 400 हो जाएगा। हम क्या करते हैं 5 आवर्स की बात कर रहे हैं, इसको भी 5 आवर ले लेंगे। तो 5 आवर में इट विल कवर 400, ठीक है। बस ने 400 कवर किया, कार ने कितना किया, देखो पहले 4 आवर में इट विल कवर 320, और अगले 1 आवर में इट विल कवर 100, मतलब 420। तो कार ने कवर किया 400, बस ने कवर किया कितना 420, राइट। अब टाइम हो गया 2 PM, डिस्टेंस कितनी बची इनके बीच में, डिस्टेंस बची है 380, क्योंकि 820 कवर हो गया, 1200 में से 820 घटाओ 380 डिस्टेंस बची। अब देखो स्पीड ऑफ कार कितनी हो चुकी है, वो 100 हो चुकी है, स्पीड ऑफ बस कितनी, वो भी 100 हो चुकी है। तो टाइम टेकन टू मीट आफ्टर 2 PM 380 अपॉन 200, ये कट गया, दिस इज 3.8। तो ये हो जाएगा 3.8 है ना, 1.9 या
1 आवर 0.9 इंटू 60 कर लो तो ये जाएगा 1 आवर 54 मिनट। और हमारा जो इनिशियल टाइम था 2 PM, तो 2 PM से 1 आवर 54 मिनट, तो इट इज 354, राइट। इट विल मीट एट 354। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में। देखो एक ही ऑप्शन में 354 दिया है, तो नो नीड टू गो फॉर डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन में 354 दिया है, तो मार्क योर आंसर एज बी। सो दिस इज योर आंसर बी, दिस इज करेक्ट आंसर। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि मैंने कैसे सॉल्व किया इन चीजों को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। आपको बहुत ढंग से देखो, इस तरह क्वेश्चन कैट 2019 में आया हुआ है। सो अब आपको रिवर्स प्रोसेस में ध्यान रखना है कैसे इन चीजों को हम इजिली कर सकते हैं। नाउ moving to the next question. 20 workers can complete a piece of work in 15 days. All of them started the work together, but on every alternate day starting from the second day, some worker did not turn up for the work. The number of worker who did not turn up for the work on the second day was 2, on the fourth day was 4, on the sixth day was 6, and so on. In how many days was the work completed? Now बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो आपको मैंने बार बार बताया कि इफ यू प्रिपेयरिंग, इफ यू गिविंग कैट दिस ईयर, तो आपको अब करना क्या चाहिए, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना चाहिए, ठीक है। वंस यू पॉज दिस वीडियो, इसको खुद से ट्राई करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूरा, क्योंकि आपको इसी वीडियो में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। इट इज मस्ट कि आप अभी वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। 20 वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो M1D1 टोटल वर्क इज 20 इंटू 15, राइट। टोटल वर्क हो गया हमारा 20 इंटू 15, ये टोटल वर्क हो गया। अब हुआ क्या, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड डे सम वर्कर डिड नॉट टर्न अप। मतलब पहले दिन तो 20 लोगों ने काम किया, सेकंड डे में 2 लोग नहीं आए, तो 18 लोगों ने काम किया, थर्ड डे 18 ही रहे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ वर्कर हु डिड नॉट टर्न अप फॉर द वर्क ऑन द सेकंड डे वाज 2। मतलब अगर पहले 20 लोग थे तो अब 18 लोग आए। अच्छा, उसके बाद थर्ड डे, देखो ये तो हो गया डे 1, दिस इज डे 2, डे 3। अब डे 4 में कुछ चेंज हुआ है। डे 4 में कितने लोग आए? ऑन द फोर्थ डे वाज 4, तो फोर्थ लोग absent थे। Who did not turn up for the work on the second day was 2, ठीक है। तो अगर 20 थे तो डे 1 में 20 थे, फिर अगले दिन कितने लोग हो गए? 18 हो गए। फिर डे 3 में 18 हो गए। डे 4 में कितने हो गए? अब 18 में से 4 कम कर दो, 14 इंटू 1, और डे 5 में भी तो यही रहे। ऐसे करते करते हमको देखना है कि हमारा वर्क कितने दिन में खत्म होगा, राइट। सो जरा यहाँ पर यह एक पैटर्न बनेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको एक बात समझनी है इस क्वेश्चन में। एक लॉजिकल ये है कि इस केस में हमारे पास जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन में ये कंफर्म है कि वैल्यू देखो 20 और थोड़ी इजी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली कर सकते हैं। इसको हम अगर डायरेक्ट लिख भी ले तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। अगर हम इसको पूरा भी लिखें तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसको पैटर्न बना के, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि केवल डे 2 में ही 2 वर्कर गायब है, लेकिन डे 3 में फिर 20 आ गए, डे 4 में फिर 20 है, डे 5 में फिर डे 4 में फिर 4 कम हो गए, डे 4 में फिर 4 कम हो गए, लेकिन डे 4 में फिर 4 कम हो गए, लेकिन डे 5 में फिर 20 है। क्वेश्चन का लॉजिक ये है। देखो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ, पूरी कंडीशन दोबारा लिख रहा हूँ मैं। देखो M1D1 20 इंटू 15 इज इक्वल, पहले दिन 20 लोग एक दिन काम किया, सेकंड डे में 2 लोग नहीं आए 18 इंटू 1, लेकिन थर्ड डे में फिर सारे आ गए। फिर फोर्थ डे में 4 लोग कम हो गए, 16 लोग रहे, प्लस फिर 20 लोग आ गए, प्लस फिर अगले दिन 12 लोग हो गए, 6 डे में 6 लोग, तो 14 लोग हो गए, फिर 20 एंड सो ऑन। इस तरह से जब ये टोटल सम 300 होगा तब हमारा वर्क हो जाएगा। देखो 20 प्लस 18 ये वैल्यू, प्लस 20 प्लस 16 दिस वैल्यू,
प्लस अगली वैल्यू 20 प्लस 14 प्लस 20 प्लस अगला क्या होगा, अगर ये देखो 18 है, दिस इज 16, दिस इज 14, तो अगला होगा 12 एंड सो ऑन। अब देखो ये पैटर्न क्या चल रहा है, देखो दिस इज 38, दिस इज 36, दिस इज 34, दिस इज 32 एंड सो ऑन। अच्छा ये दो दो दिन का पैटर्न है। अगला क्या होगा बताओ, अगला 30 नहीं होगा, फिर अगला क्या होगा 28 होगा, अगला 26 होगा। देखो सम कितना हो रहा है, 38 प्लस 36 74 प्लस 34 108 प्लस 32 140 है ना, प्लस 30 170 प्लस 28 198 प्लस 26 214 नहीं 224, मतलब यहाँ तक हमारा 224 हो गया। अच्छा अगले दिन क्या होगा 24 होगा, फिर 22 होगा, प्लस 20 होगा। देखो लगता है यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 24 ऐड कर लो 224 में, तो दिस इज 248 प्लस 22 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, इफ वी ऐड 22 इसमें तो ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 290। अच्छा अगले दिन 18, मतलब हमारा इस दिन में काम हो जाएगा, है ना। हमें तो 10 यूनिट कराना है। अब समझो यहाँ पर बात को कि बल्कि इधर 20 लोग होंगे ना तो आधे दिन में काम कर देंगे, क्योंकि तो दो दो पार्ट चल रहे हैं। देखो अब हमारा आंसर क्या होगा, मैं इसका एक तरीका बताऊंगा। 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 डेज तो ये हो गए। अच्छा अगले दिन 20 मैन आएंगे ना, और फिर उसके बाद कितने आएंगे पैटर्न के हिसाब से, तो अगले दिन 20 लोग आके आधे दिन में काम कर रहे हो, तो 20.5 इज द आंसर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इसका आंसर हो गया 20.5। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पे आपको वर्क करना चाहिए, समझ में बात ये। तो दिस इज द इजियर अप्रोच, सबसे आसान अप्रोच यही होगी इस क्वेश्चन की। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पता क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई डे 1 पर ऑल वर्कर आते हैं, डे 2 पर 2 वर्कर नहीं आते हैं, 18 वर्कर आते हैं, डे 3 पर फिर 20 वर्कर आते हैं, डे 4 पर फिर 4 वर्कर गायब हो जाते हैं तो 16 वर्कर आते हैं, डे 5 पर फिर 20 वर्कर आते हैं, लेकिन डे 6 पर फिर 4 लोग, अब 6 लोग गायब हो गए। बोल रहा है ना कि 6th डे पर 6 लोग गायब हैं, तो ये हो गया 14 वर्कर एंड सो ऑन। इस तरह से करते करते हमको काम कंप्लीट कराना है बस। देखो अगर ये लगातार बराबर कम होते तो हमारे पास एपी बनती, लेकिन ये बराबर कम नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, हमने जो इस क्वेश्चन का लॉजिक ये लगाया कि भाई 15 इंटू 20 टोटल वर्क इज 300। पहले दिन 20, दूसरे दिन 18, ठीक है, ये डे 2 हो गया 2 डेज का। फिर अगली बार 20 प्लस 16 ये भी 2 डेज का हो गया। फिर 20 प्लस 14 ये भी 2 डेज का। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। इन फर्स्ट 2 डेज में कितना काम हुआ 38, नेक्स्ट 2 डेज में काम हुआ कितना 36, नेक्स्ट 2 डेज में 34। तो अगर मुझे ऐसा करते करते इसका सम निकालता हूँ तो दिस इज n/2 2। अब यहाँ पे समझना, आप इसको ऐसा मत करो, आप इसको सिंपली ये समझ सकते हो कि यार यहाँ पे करते करते आपको देखो ऑप्शन में 20 के आसपास है, तो मतलब 10 पेयर तो जाएंगे जाएंगे, मतलब 10 बार तो करना पड़ेगा। तो इसका 10 टर्म का सम निकाल लो, सम ऑफ 10 टर्म्स। मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ऑप्शन में देखो सारे ऑप्शन 20 के आसपास है, तो मतलब ये 2-2 दिन का है, तो अगर ये 20 के आसपास है तो आप 10 मान लो सम ऑफ 10 टर्म्स, क्योंकि हर टर्म में 2-2 दिन है। तो 10/2 2 इंटू 38 प्लस 10 - 1 इंटू -2, ये तो हो रहा है। दिस इज, ये काट दो, 10 38 -9 तो 290। बस इसका मतलब 10 पेयर मतलब 20 डेज में कितना काम हो गया 290। और अगले दिन कितने लोग आएंगे, पैटर्न कंप्लीट होता अगले दिन फिर 20 लोग आएंगे, काम हमें 10 यूनिट कराना है। इसका मतलब हाफ डे में काम हो जाएगा, तो 20 हाफ, ये आंसर हो गया। तो लॉजिकल समझना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question is a rectangular sheet of paper ABCD with ABS 10 and BC 8 cm folded along the line BE, where E is a point on AD. As a result, A coincide with F, a point on CD. Find the measure of AE.
चलो इसको आप वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज ए बी सी डी, this is 10, this is 8, and this is a rectangle. It is given that BE, where A is a point, E is a point on AD such that A को हमने फोल्ड किया, तो मान लो ये पॉइंट से फोल्ड किया तो A यहाँ पर आ गया पॉइंट, ये बोल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट F हो गया, तो ये लाइन ड्रॉ कर दो। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, राइट। फाइंड द मेजर ऑफ AE, ये E पॉइंट है, ठीक है। ये इक्वल है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर ये साइड x है तो दिस इज ऑल्सो x, ठीक है। ये 10 है, दिस विल बी अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस लगा दिया, 90 डिग्री है। अच्छा, एंड बिकॉज ये साइड 10 होगी, दिस इज 10, दिस इज, अच्छा अब ये x है, दिस इज 8 माइनस एक्स, ये साइड कितनी होगी? यस, अगर ये 10 है, दिस इज 8, तो यूजिंग पाइथागोरस दिस साइड वुड बी 6, और अगर ये साइड 6 होगी तो दिस विल बी 4। अब आप लगा दो पाइथागोरस इन ट्राइंगल EDF, यूजिंग पाइथागोरस इट इज 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर, हमको x निकालना है। 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, this x square cancel, this is 64 and 16, 80 is equal 16x, तो x कितना हो गया 5। हमें यही तो पूछा है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू होगी 5, आंसर इज सेकंड ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ढंग से मैनेज करो, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैट एग्जामिनेशन, राइट। आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2008 में इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन है, द फिगर्स बिलो शोज द प्लान ऑफ अ टाउन वेयर ऑल द स्ट्रीट आर एट राइट एंगल टू वन अनदर, अ रेक्टेंगुलर पार्क P is situated inside the town with a diagonal road running through it. Mohan's home and office are located at H1 and O respectively. He has to start from his home, visit his girlfriend Meena, whose house is located at H2, and his friend Rajat, whose house is located at H3, and then go to his office. If Mohan want to take the shortest path, then in how many ways can he choose it? ऑप्शन है 120, 96, 80 एंड 92। देखो यार, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे समझना क्या है। सी इट स्टेज दैट यहाँ पर मोहन का जो घर है ना, मोहन्स होम एंड ऑफिस, तो ये तो मोहन का घर हो गया, ठीक है, और ये ऑफिस है। He has to start from his home, visit his girlfriend Meena, ये H पर यहाँ जाना है इसको, and his friend Rajat, रजत कहाँ पर रहता है, H3 पर, and फिर H3 से उसको ऑफिस जाना है। सो यहाँ पर एक लॉजिक समझो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो यू वांट टू गो फ्रॉम अ पॉइंट, लेट्स से दिस इज योर पैटर्न, एक और बढ़ा लो आगे, यू हैव टू गो फ्रॉम A to B, ठीक है। अब यहाँ पर परम्यूटेशन का लॉजिक ये लगता है, देखो जिससे अगर इसको शॉर्टेस्ट की बात करते हैं, देखो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम A to B, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा जब वो लेफ्ट जाए और टॉप जाए, मतलब ऐसा ना हो कि वो ऐसे जाके वापिस ना मुड़े, मतलब वो ऐसे जाके ऐसे जाए, आगे जाए, ऐसे जाए। आप कोई भी एक पाथ सेलेक्ट कर लो, लेट्स से वी सेलेक्ट दिस पाथ, जो मैंने पाथ बनाया, इसमें अगर मैं काउंट करता हूँ, देखो ये जा रहा है वो लेफ्ट है ना, दिस इज लेफ्ट,
दिस इज टॉप, दिस इज लेफ्ट, लेफ्ट, टॉप, टॉप, लेफ्ट। अच्छा मैं कोई दूसरा पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से आई सेलेक्ट दिस पार्ट। अब देखो कितने लेफ्ट कितने राइट हैं। देखो लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, लेफ्ट, टॉप, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। अब जरा गिनो, पहला जो मैंने ग्रीन से बनाया था, ग्रीन वाले को देखो जरा, टॉप, लेफ्ट, लेफ्ट, टॉप, टॉप, लेफ्ट। और अगर मैं येलो की बात करता हूँ, येलो में कितना है, लेफ्ट, 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 टॉप, लेफ्ट, ये टॉप है यार, ठीक है, टॉप, टॉप। अब देखो कितने टॉप है, पहले वाले में 1 2 3 और 3 लेफ्ट है। अच्छा एक सेकेंड, लेफ्ट, ये लेफ्ट, एक और लेफ्ट होगा यहाँ पर, तो 3 टॉप है और 4 लेफ्ट है, ठीक है। देखो एक लेफ्ट ये रहा, एक लेफ्ट ये, 2 और ये 4, इधर 1 2 3 4 लेफ्ट 3 टॉप। मतलब वो कोई भी पाथ ले, उसको 3 बार टॉप चलना है, 4 टाइम लेफ्ट लेफ्ट चलना है। तो अब ये वही तो चीज हो गई। इफ वी से दैट वी हैव टू अरेंज 4 लेफ्ट एंड 3 t in a word formation, तो दिस इज फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। तो इसमें लॉजिक ये होता है कि अगर देखो इसको पहले H1 से H2 जाना है, तो H1 से H2 जाने के लिए इसको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो कितने उसको चलने, 1 2 लेफ्ट चलना है और 1 2 2 टॉप चलना है। तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 2, कट गया, दिस इज 2। तो उसको अगर अपने घर से मीना के घर जाना, तो इट कैन बी डन इन दिस फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 वे। अच्छा अब जरा देखो अगला स्टेप बड़ा काम का है। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम H टू H3, देखो समझना बात को, इस पॉइंट पर आने के लिए अगर वो यहाँ पर आ जाए तो फिर अगला तो एक ही वे बचता है। इस पॉइंट पर अगर ये पहुंच गया तो फिर यहाँ पर एक ही वे बचता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3, 3 लेफ्ट और 1 टॉप। तो अगर मैं कहता हूँ H2 टू H3 फैक्टोरियल 4 आउट ऑफ फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, दिस इज 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया 4 वेज, ठीक है। अब H3 से HO जाना है इसको। तो अब H3 से O जाने के लिए कितने वेज है उसके पास, फिर वही कॉन्सेप्ट, ये यहां से जाएगा 1 लेफ्ट 3 टॉप। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, दिस इज सेम है, तो 4 वेज। अब टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज टू मूव फ्रॉम H1 to O, दिस इज 4 6 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 96। आंसर इज बी ऑप्शन। तो बहुत बढ़िया लॉजिक है। इस पर बेस आप मेरी फ्री लेसन्स देखो, मैंने फ्री लेसन्स में इस पर बेस एक्सप्लेनेशन बहुत सारे दिए हैं। एंड यू कैन ज्वाइन, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सो दैट यू कैन गेट ऑल द फ्री लेसन्स, फ्री कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसमें मुझे एक सेपरेट क्लास ले लूंगा मैं यूट्यूब पर, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा ढंग से समझ में आ जाए। बट जिसने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल सर्कल्स एंड ए स्मॉलर सर्कल आर inscribed as shown in the figure in a semicircle of radius r, find the radius of the smaller circle। मतलब हमको उसकी रेडियस पूछी हुई है, we have to calculate radius of this। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से ज्वाइन करता हूँ इसको, ये इसको ज्वाइन कर लो और ये ज्वाइन कर लो, ठीक है, एंड ज्वाइन दिस और ये दिस। ये बड़ा मजेदार सा बात है। देखो ये रेडियस मान लो x, ये मान लो आप y, यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी, दिस विल बी x प्लस वाई। अच्छा दिस इज ऑल्सो x, दिस विल बी x। और अगर ये पूरी रेडियस आपको r दी हुई है, तो दिस लेंथ वुड बी r माइनस एक्स प्लस वाई, और ये लेंथ हो जाएगी x। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं पाइथागोरस इन दिस ट्राइंगल। तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाने वाला है, दिस इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2r एक्स प्लस वाई। ये कट गया।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जरा इसको अंडर मल्टीप्लाई कर लो, 2r(x माइनस 2r(y), हमको y निकालना है तो उसको इधर शिफ्ट कर लो, 2r(y) इज इक्वल, ये हो गया x माइनस या r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे r और x में रिलेशन। देखो यहाँ समझो बात जरा, इस वाले फिगर में ये आपका है, ये अगर x है, दिस इज x, दिस विल बी x√2, और ये x है, तो हम कह सकते हैं भाई r इज इक्वल x प्लस x√2, तो यहाँ से x हो गया r/√2 प्लस 1 या r√2 माइनस 1, ये हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये x की वैल्यू r माइनस √2 r प्लस, ये हो जाएगा माइनस r है ना x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस r प्लस r, ठीक है, स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2r(y) इज इक्वल, ये हो जाएगा r 2r माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ से r कॉमन ले लो, तो r स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2 माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो गया 2r(y), तो देखो r कट गया, 2y इज इक्वल, थोड़ा छोटा कर देते हैं, नाउ 2y इज इक्वल r, ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 4√2, तो y इज इक्वल, यहाँ से हो गया 6r, अंदर बचेगा 3 माइनस 2√2 और बाई 2 भी आ गया, तो 2 कट गया 3, तो दिस इज 3r 3 माइनस 2√2, दिस इज आंसर, y की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इससे? अच्छा, यहाँ पे 2 तो कॉमन आया था, यहाँ से 2 कॉमन आया था ना, तो ये बचेगा खाली r3 माइनस 2√2, r3 माइनस 2√2, आंसर इज सी ऑप्शन। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो इस तरह क्वेश्चन पे आपको कमांड करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। So question is, two numbers A and B, LCM of two numbers is 120 and their product is 480. Which of the following cannot be their sum? तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को यहाँ पॉज कर लो आप लोग, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कैट एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम है 120, तो A इंटू बी का प्रोडक्ट दे रखा है 480। अच्छा, मान लो इनका HCF H है, तो HX एंड HY, यहाँ पर याद रखना, जब हम HX और HY एज्यूम करते हैं तो वी आर एज्यूमिंग दैट X एंड Y आर को प्राइम, वी आर एज्यूमिंग दैट X एंड Y आर को प्राइम। तो दिस इज LCM 120 इंटू X। LCM में क्या होता है, H, बल्कि ऐसा कर सकते हैं ना, हमने मान लिया कि भाई उनका HCF H है, नंबर है HX XY, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल LCM इंटू HCF, ये रूल होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया है 480, LCM दिया है 120, तो HCF कितना आ जाएगा, यहाँ से HCF आ जाएगा 4। तो अगर HCF 4 हो गया तो नंबर हो गए 4x एंड 4y। बस ध्यान रखना यही काम की चीज है, 4x इंटू 4y इज इक्वल 480 प्रोडक्ट, तो XY कितना हो गया, 1630 हो गया। बस काम ये रखना है आपको याद कि भाई XY को प्राइम है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो उनके पेयर बनाएंगे, क्या क्या पॉसिबल है। XY 30 है, तो X1 हो सकता है 30, दिस इज पॉसिबल। 215 को प्राइम है, पॉसिबल। 310 इज ऑल्सो पॉसिबल। 56 इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई और पॉसिबिलिटी? नो। अगर ऐसा कुछ है तो नंबर क्या हो जाएंगे, A हो जाएगा और B हो जाएगा। 4 एंड 120, दिस इज, देखो क्योंकि मेरा नंबर 4x 4y है ना, x आ गया 2, y आ गया 15, तो दिस इज 4 2 जा 8, 15 4 जा 60, और 12 एंड 40, एंड दिस इज 20 एंड 24। इनका सम पूछा है मुझको, तो अब इस कंडीशन में सम कितना हो जाएगा बताओ, सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा इनका सम 124, 68,
एंड 52 और 44, कौन कौन सा ऑप्शन में है? 68 है, 52 भी है, 44, तो 80 इज नॉट पॉसिबल। हमारा क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर सम, तो यहाँ पर केस बहुत बनाना जरूरी था। इस क्वेश्चन में दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैंने जो केस बनाए वो इंपॉर्टेंट थे। इज दिस क्लियर? तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, इन सब चीजों पे वर्क करो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज what is the number of non-negative integer solutions for the equation x square minus xy plus y square is equal x plus y? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव बोल रहा है तो इसका मतलब जीरो ले सकते हो आप, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस वाई। इस तरह क्वेश्चन का रूल बस एक ध्यान रखना आप लोग कि यू हैव टू मेक सम परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। हमको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बनानी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। अब मैं पता क्या करने जा रहा हूँ, हाउ टू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर। देखो अगर मैं इस सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, और इधर शिफ्ट कर लो माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल 0। अब ये क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मैंने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर लिखा, 2xy लिखा, माइनस का y स्क्वायर लिखा, प्लस एक एक्स स्क्वायर छोड़ दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इधर y स्क्वायर माइनस 2y। अभी भी अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ तो मेरा क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने कई क्वेश्चंस आपको कराए हैं। वॉच माय फ्री वीडियोज, स्पेशल क्लासेस जो मैं लेता हूँ, एंड रिमेंबर टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल BHARAT भारत सर मैथ्स, ठीक है। आप अनअकैडमी पर या टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल को सर्च करो भारत सर मैथ्स। थ्रू दिस यू विल गेट ऑल माय फ्री लेसन्स, जिससे कि आप, मैं जो भी रेगुलर फ्री क्लासेस लेता हूँ उसका आपको लिंक मिल जाया करेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, x माइनस वाई, एक्स माइनस 1 एंड y माइनस 1 2 आना है, और आपको बोला है कि नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स वाई की देखो 0 0 हो सकती है। रख के देख लो, 0 0 रखोगे 2 आ जाएगा, और 2 2 इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। आप रख के देख लो, 0 0 रखोगे, 2 2 रखोगे। अच्छा अच्छा, क्या 1 0 पॉसिबल है? यस, 1 0 पॉसिबल, 1 2 इज ऑल्सो पॉसिबल। अब आपको बस हिट एंड ट्रायल करना है, सोचना है 2 1 एंड 0 1, तो 6 वैल्यूज पॉसिबल। आंसर इज नन ऑफ दीज। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पे वर्क करना है आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन बहुत तैयार करना है आप लोगों को। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, एक लॉग का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज दैट इफ log रूट p प्लस log रूट q प्लस log रूट r इज इक्वल हाफ log 1 upon root pqr, then which of the following is true? Remember, when there is no base given, we will assume that base is 10. ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको log में बेस ना दिया तो आप log का बेस 10 मान लोगे। एंड रिमेंबर, जो कैट में क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा टफ नहीं होते, थोड़ा लॉजिकल होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, log रूट p प्लस log रूट q प्लस log रूट r इज इक्वल हाफ log 1 अपॉन रूट पी क्यू आर। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। देखो एक रूल होता है, log का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, दिस इज log ए बी, और एक होता है log ए बी, दिस इज log b की पावर है। मतलब अगर पावर होगी तो इधर आ जाएगी, या अगर मल्टीप्लाई है तो इसको आप इधर कर सकते हो। दिस इज log रूट पी क्यू आर, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस टू, टेक दिस टू दिस साइड, log 1 अपॉन रूट पी क्यू आर, ये 2 इधर आ जाएगा, तो log पी क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल log, वेन एवर वी डोंट हैव एनीथिंग, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम log हटा सकते हैं। तो दिस इज पी क्यू आर, और ये हो जाएगा इज इक्वल 1 अपॉन रूट पी क्यू आर। तो मैं कह सकता हूँ भाई पी क्यू आर और रूट पी क्यू आर इज इक्वल 1, इट गिव्स यू पी क्यू आर इज इक्वल 1। हमारे पास आ गया पी क्यू आर
इज इक्वल 1, क्योंकि भाई ये पावर क्या हो जाएगी, दिस विल बी, जो ये वहां पर होगा पी क्यू आर की पावर 3/2 इज इक्वल 1, तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज 1, बी इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया है। क्वेश्चन सेज दैट in a regular octagon ABCDEFGH the side length is 2 unit, then what is the area of triangle ADG? देखो एक चीज ध्यान रखना, in case of octagon each interior angle is 135 डिग्री, ये ध्यान रखना। और आपको याद हो जाए हेक्सागन का एंगल 120 डिग्री होता है, कुछ छोटे छोटे बेसिक आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन है इन ए रेगुलर ऑक्टागन ABCDEFG द साइड लेंथ इज 2 यूनिट। ठीक है, आपको साइड की लेंथ दे रखी है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADG? देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। फॉर दिस डायग्राम फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, because if you got your diagram correct then question would be very easy. This is A B C D E F G and H। ठीक है, अब इसकी लेंथ 2 यूनिट है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADG? कहां पर है A? ओके, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंड दिस। देखो यार, देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं ऐसी लाइन ज्वाइन करता हूँ, देखो ये एंगल हो गया 135, दिस इज 135, ये होगा 45, दिस इज ऑल्सो 45। इस केस में ये जो साइड आएगी ना, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये साइड, ये भी 45, दिस इज ऑल्सो 45, और यहाँ पर ये जो एंगल है दिस इज 135, और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे? दिस इज 22.5, दिस एंगल इज 22.5। मैं जी थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। देखो हमारे पास मेन एम होगा, देखो ये एंगल कितना है 45, मुझे एरिया पूछा है। अगर मैं ये साइड निकाल लेता हूँ, इफ वी कैलकुलेट दिस साइड और ये साइड निकल जाए हमारी, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। इफ वी कैन कैलकुलेट दिस साइड एंड दिस साइड, एंगल दिया है तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर दिस एंड दिस। देखो ये 2 है, दिस विल बी 2। ठीक है, ये 45, दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 45, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा, ये साइड कितनी होगी 2/√2 या √2, दिस इज ऑल्सो √2, दिस इज ऑल्सो √2। सेम वे ये साइड कितनी हो गई, GD लेंथ हो गई, जो कि बराबर होगी DA की, विच इज 2 + 2√2, या 2 कॉमन लो √2 + 1। सेम वे अब एरिया कैसे होगा? एरिया ऑफ ADG इट इज हाफ। आपको पता है ट्राइंगल में अगर किसी दो साइड के बीच का एंगल दिया हो तो ये होता है हाफ GD, वो साइड का प्रोडक्ट GD इंटू AD साइन 45। बस अब ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो भाई एरिया हाफ GD AD 2√2 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और साइन 45 1/√2। तो देखो ये 2 कट गया, दिस इज 2 एंड दिस इज √2 + 1, 3 + 2√2 अपॉन √2। राइट, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? राइट, हमें आंसर भी तो मैनेज कराना है अपना। अब आप इसको कॉन्जुगेट से 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, दिस विल बी 2, 3 + 2√2 अपॉन 2, ये 2 कट गया, अब इस √2 मल्टीप्लाई करो, 3√2 + 4, विच ऑप्शन? 4 + 3√2, आंसर इज C ऑप्शन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का बढ़िया क्वेश्चन है। राम एंड श्याम
start together from their respective positions and start walking toward each other. Ram is 4 times faster than Shyam. They meet at point C at 2:10. If Shyam leaves 10 minutes earlier than Ram, they would meet at what time? 2 p.m., 2:02 p.m., 2:06 and 2:08. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस, थोड़ा लॉजिकल है, ट्राई करो सब लोग। मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ आपको, देखो वीडियो पॉज कर लेना, देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। राम यहाँ से स्टार्ट करता है, श्याम यहाँ से स्टार्ट करता है, एंड राम इज 4 टाइम्स तो फास्टर। अगर ये स्पीड x है तो इसकी 4x स्पीड है, राइट, इतना हमें पता है। दे मीट एट द पॉइंट C, तो यहाँ पे C पे कहीं मिलते हैं 2:10 पर। द टाइम ऑफ मीटिंग इज 2:10 PM। आगे बोल रहा है इफ श्याम लीव्स 10 मिनट अर्लियर, ये श्याम 10 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है, ध्यान देना, बिकॉज एवरी पर्सन इज मूविंग विद देयर ओन स्पीड। तो अगर ये 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है तो श्याम विल रीच एट दिस पॉइंट एट 2 PM, क्योंकि अगर वो 10 मिनट पहले चला तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा सी पर। इसका मतलब इतनी देर में राम कितना पीछे होगा? राम विल बी 10 मिनट बिहाइंड, राइट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई 2 बज गया और श्याम तो सी पर है, और राम कहाँ है? राम अपनी स्पीड का कितना पीछे है? क्योंकि उसको 10 मिनट लगना है ये डिस्टेंस कवर करने में, तो उसकी स्पीड है 4x। तो ही विल बी, अब डिस्टेंस ये जो होगी, दिस डिस्टेंस वुड बी, ये राम को कवर करनी है 10 मिनट में, क्योंकि राम तो 2:10 पे चले पहुंचेगा यहाँ पर। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी? टाइम है 10 मिनट, 4x इंटू 10/60, ठीक है, ये 6 सेकंड का 2x/3, तो दिस डिस्टेंस इज 2x/3। अब टाइम हो रहा है 2 PM, राम चल रहा है 4x की स्पीड से, श्याम चल रहा है x की स्पीड से, तो देयर टाइम ऑफ मीटिंग 2x/3, ये 2x/3 तो आएगा अपॉन 5x, तो दे विल मीट आफ्टर 2/15 आर, या 16 मल्टीप्लाई करो 15 4 जा, दे विल मीट आफ्टर 8 मिनट। 8 मिनट कब से? अपने 2 PM टाइम से, तो 2:08 PM, आंसर इज डी ऑप्शन। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, मैंने बहुत शॉर्ट में किया है। आप इसको अगर नॉर्मली करोगे तो बहुत टाइम ले लोगे, इसको दोबारा समझना, वीडियो को पॉज करना, और जब आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो कभी भी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो वहाँ मुझसे आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लॉग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ mod of x plus 2 to the power log 10 x square plus 6 plus 9 is equal 1, then how many values of x satisfy the above equation? ऑप्शन है 0, 1, 2 and 3। देखो भाई, आप वीडियो पॉज कर लेना और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। नाउ लॉजिक समझना, इस क्वेश्चन को कैसे इजीली कर सकते हैं। mod of x plus 2 log 10 x square plus 6x plus 9 is equal 1। अच्छा, कोई भी पावर, a की पावर x अगर 1 तभी होगी when a is 1 या x is 0, मतलब या तो बेस 1 हो, 1 के बाद कोई भी पावर हो, इट विल ऑलवेज गिव यू 1, और अगर पावर 0 हो, ठीक है, ये 2 केस। तो पहले लेते हैं a1, x plus 2 is equal 1, x plus 2 is equal plus minus 1, तो x plus 2 जब प्लस लेंगे तो gives you -1। अच्छा, x plus 2 जब होगा -1 तो गिव यू x इज इक्वल -3। बस जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व करो तो ध्यान रखना ऊपर लॉग है, ऐसी वैल्यू मत लेना जिससे कि नेगेटिव बन जाए। जरा एक काम करो, हमारे पास जो 2 वैल्यू आई ना, एक बार आई x इज इक्वल -1, जो चेक करो यहाँ रख के, 1 -6 -9, इट विल मेक इट नेगेटिव। इसका मतलब अब आप समझे मैंने क्यों बोला, अगर नेगेटिव बन रहा है तो वो वैल्यू आपको हटानी होगी, राइट। इफ इट मेक्स इट नेगेटिव आपको वैल्यू हटानी पड़ेगी। सो -1 रखने पर ये नेगेटिव आ गया ना, नहीं पॉजिटिव आएगा, सॉरी, ये +9 है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब दिस वैल्यू इज पॉसिबल। अच्छा, -3 रख के देखते हैं, जरूर चेक किया करो, लॉग में पता है यही गलती होती है आप लोगों से। जरा -3 रखो तो ये हो गया 9 -18 + 9, 0 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो ये वैल्यू नहीं होगी।
मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन में लॉग और आप एक्स की वैल्यू ऐसी आ रही है, वो लॉग में रख के देख लो, नेगेटिव या जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन लेंगे हम, व्हेन लॉग 10x² + 6x + 9 बेस पावर जो है वो जीरो हो जाए, और लॉग जीरो कब होता है, जब उसकी वैल्यू 1 हो जाए, मतलब x² + 6x + 9 = 1, x² + 6x + 8 = 1, 0, 8 के फैक्टर जिनका सम 6 आए तो 2 1 4, यहाँ से x आ गया -2, x आ गया -4। -2 नहीं ले सकते हम, वाई, सोचो, क्योंकि जीरो हो रहा है। अब -4 इज पॉसिबल, तो दो वैल्यू पॉसिबल है, x -1 और x -4। आंसर इज टू वैल्यूज। हमको बोला है हाउ मेनी वैल्यूज x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हमको वैल्यूज नहीं पूछी, हमको पूछा है कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी। इज दिस क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक एस्केलेटर का क्वेश्चन है। Amal walks up an ascending escalator from the ground floor and reaches the first floor after taking 70 steps. Bimal walks up the same escalator also from the ground floor and reaches the first floor after taking 60 steps. The ratio of speed of Amal and Bimal is 4:3. Find the number of steps they would have taken to walk up had the escalator been switched off. Option है 120, 140, 100 and 150। तो चलो आपको सिखाते हैं कि एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो भाई, एस्केलेटर में दो बड़ी काम की चीजें, वेदर इट इज मूविंग अप और डाउन। तो मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है असेंड कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये असेंडिंग कर रहा है, तो मान लेते हैं उसकी स्पीड है a स्टेप पर मिनट, मान लो, ठीक है। उसके ऊपर चलने की स्पीड है a स्टेप, मतलब 1 मिनट में a स्टेप ऊपर हो जाता है। अब इसमें ये जो पहला पर्सन है जो है अमल, उसकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। देखो, स्पीड ऑफ अमल एंड स्पीड ऑफ बिमल इज 4:3। तो मान लो ये 4x है, ये 3x है, तो इसका मतलब अमल टेक्स 4x स्टेप पर मिनट टू गो टू अप एंड बिमल इज ऑल्सो मूविंग, बिमल टेक्स 3x स्टेप पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे अलग अलग। देखो, अमल को लगता है 70 स्टेप, तो टाइम ऑफ अमल 70/3x, ठीक है। वो 70 स्टेप लेके ऊपर पहुंचता, तो टाइम लगा उसको 3x, 70/3x। टाइम ऑफ बिमल, बिमल करता है 60/4x है यार, दिस इज 3x। अब समझने की बात यहाँ पर ये है कि जितने टाइम तक अमल उस एस्केलेटर पर रहा, उतने टाइम तक एस्केलेटर चलेगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ टोटल स्टेप। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्या करना होता है, सब पर टाइम निकालना होता है, एस्केलेटर की स्पीड माननी होती है और इनकी स्पीड चाहिए होती है। देखो, अगर मैं अमल की बात करता हूँ, अमल ने 70 स्टेप खुद से लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 70 स्टेप तो खुद के साथ साथ एस्केलेटर के स्टेप भी लिखने होंगे हमको। एस्केलेटर कितने स्टेप लिए, एस्केलेटर की स्पीड है a एंड इट मूव्स फॉर 70/4x टाइम, क्योंकि जितनी देर तक अमल रहा होगा तब तक एस्केलेटर चलेगा। बस यही लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि बिमल भी चल रहा है, बिमल लेता है 60 स्टेप और वो उसकी टाइम कितना है 60/3x। हमको ये सॉल्व करना है बस, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, इस स्टेप से मेरा x a/x की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, ये इधर ले आओ, ये ऐसा करो, इसको 2 कर लो, इसको 35 कर लो, ये 3 से 20 टाइम गया। ये हो गया 10 इज इक्वल 20 a/x माइनस 35 2x। 2x ले लो एलसीएम, दिस इज 40x माइनस 35x। ये सॉरी ए है, ये ए होगा, तो ये हो जाएगा 5a/2x 10। तो a/x कितना हो गया 4। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टेप, तो कोई भी एक कंडीशन ले लो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो। 60 प्लस a इंटू 60/2x 3x, सॉरी ये कट गया, और 1/x की वैल्यू कितनी है 4, तो दिस इज 60 प्लस
20 into 4, 80 plus 60, 140 step are there. अब चाहे आप a by x वैल्यू यहाँ पे रख दो, whether you put this value in this, right? So remember to join an Academy subscription plan using my referral code, that is Bharat_Gupta. Using this code you will get 10% discount on all course fee. ये आपको कोड ढंग से दिख नहीं रहा होगा, मेरी इमेज आ रही है, तो ये है कोड Bharat_Gupta to get 10% discount. So we will meet you with some more classes like this. All the best.